Yes, good afternoon to all of you. Happy good afternoon. Chalo, good afternoon to everyone, all of you. So good afternoon to all. Just give me 1 minute, okay? 1 minute. So let me load the sheet over here. जो sheet हम लेने वाले हैं वो एक बार शेयर करता हूँ ग्रुप पे. So share email. Good afternoon everyone. Just give me 1 minute. Sure. Send to desktop create shortcut. Yes, good afternoon to all. Today we will going to see the lenses part, okay? सब लोग, all of you, everyone. So आज हम lenses के बारे में study करने वाले हैं. So just tell me, are you able to see the screen? सबको screen दिख रही है? All of you? Yes, sir. 10 CBSE results are out. That's good. स्वयं सबको screen दिख रहा है ना? All of you? Yes, sir. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Let's start now. So Bhumi, don't do that. Bhumi Jain. What is happening over here? Just 1 minute. Here disable. चलो.
सर वर्कशीट कोरी होती. Kashvi, I have already sent it the worksheet on the group. Just contact to the branch, okay? Up, everyone, all of you, initially just contact to your branch, respective branches. I have already sent the worksheet on the group, okay? Yes. Chalo, let's start. Question number first. A lens does not produce any deviation of ray of light passing through center of curvature, optical center, principal focus, and axial point. What is the answer of this? That's the correct. The answer is optical center ना lens के बारे में. It's optical center. Do you know this, all of you? ये rule पता है? For example, if suppose this is a convex lens, so say suppose this is a principal axis, this is a optical center. ये diagram आपके textbook में है. So when a ray of light passes through optical center, it passes undeviated. ये undeviated pass होती है. Clear है? Everyone, सबको समझ में आया? All of you? Contact to the branch. Just contact to the branch. I have already sent it. Okay. So इसका आंसर है ऑप्शन बी. From its optical center, a lens will not produce any deviation of ray of light. अगर वो optical center से पास होती है तो. Clear है? Got this, all of you, everyone? Okay. Newcomers आपको मिल जाएगी. Just contact to your respective branch. आपको the newcomers, new students, आपको वो worksheet मिल जाएगी. Don't worry about it. Roshni, okay. The distance between the optical center and principal focus of a lens is called. What is the distance between optical center and principal focus? That is called focal length. पता है आपको ये? So again, suppose if this is a convex lens, say principal axis, optical center होगा, say this is principal focus. So this distance is nothing but it is called as a focal length. Remember, principal focus is given by capital F and focal length is given by small f. Shreya, numericals will not be there in your CET. The reason is that कि जो कुछ भी numericals होंगे ना, see all these questions of 1 mark only. और लेंस के जो न्यूमेरिकल्स है वो कम से कम 3 मार्क्स से स्टार्ट होते हैं. So न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे आपको. There will be no numericals. आएंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे जैसे कि ऐसा फॉर्मूला. ये हम क्यों करने वाले? The reciprocal of focal length in meter is called as power of lens. ये पता है ना आपको? न्यूमेरिकल्स आएंगे, so this will be now what you say, it will be 1 mark numerical. 3 marks 5 marks के न्यूमेरिकल्स तो नहीं होंगे. That's right, शिव कुमार. ये हम देखेंगे. ऐसे कुछ सिंपल न्यूमेरिकल्स है वो हम करने वाले, लेकिन इस फॉर्मूला पर न्यूमेरिकल्स तो नहीं आएंगे. 1/f is equal to 1/v minus 1/u. ये जो फॉर्मूला है ना, find the image distance, what is the nature, find the object distance, focal length. मिरर फॉर्मूला आपको हो सकता है, इट कैन बी देयर. रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट लिया नहीं, मिरर फॉर्मूला स्टेट बोर्ड को नहीं होगा लेकिन सीबीएसई बोर्ड को होगा मिरर फॉर्मूला, पर वो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आपको नहीं आने वाले. ऐसे जो फॉर्मूले है ना लेंस के बारे में, ये सब इसके ऊपर नहीं आने वाले. काहीच नव्हतं वर्कशीट मध्ये. अरे दॅट वॉज अ प्लेन वर्कशीट. जो मैंने वर्कशीट भेजी है ना, दैट इज अ प्लेन वर्कशीट. वो सिर्फ प्लेन वर्कशीट है. सो उसके आंसर्स आई एम सेंडिंग, लेकिन ये आउटलुक में कुछ प्रॉब्लम है. आई विल सेंड यू दैट आंसर्स ऑल्सो. ओके, उसके जो आंसर्स टिक किए हुए या फिर सोल्यूशन है ना, दैट आई विल सेंड इट यू. वो मैं आपको भेजता हूँ. आज 2 दिन दे दो मुझे. इन 2 days आई विल सेंड यू ऑल द आंसर्स ऑफ दिस वर्कशीट्स. कुछ तो आउटलुक में प्रॉब्लम हुआ है. देयर इज अ प्रॉब्लम इन माय दैट मेल अकाउंट. देखना पड़ेगा वो एक्चुअली क्या है, स्पैम में जाता है या ट्रैश फोल्डर में जाता है. वो ग्रेविटेशन के न्यूमेरिकल्स आएंगे, बट दैट विल बी द सिंपल न्यूमेरिकल्स. वो सिंपल होंगे, 1 मार्क के क्वेश्चंस आने वाले. सो डोंट फोकस ऑन द न्यूमेरिकल्स, ऑल ऑफ यू, एवरीवन. जस्ट फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट. मैक्सिमम थ्योरी पार्ट पर फोकस कर लो. न्यूमेरिकल्स इतना फोकस मत करना. 1 मार्क के क्वेश्चंस कौन से होंगे ना, सिर्फ वही आने वाले. इतना ध्यान रखो सिर्फ. सी साइंस का पेपर 25 मार्क्स का है. फर्स्ट ऑफ ऑल उसमें का फिजिक्स कितना होगा? आउट रफली 8 और 9 क्वेश्चंस होगा. इफ आई जस्ट डिवाइड बाय 3 किया तो रफली ओके 8 क्वेश्चन. सो उसमें भी अगर 1-2 न्यूमेरिकल आएंगे तो फॉरगेट अबाउट 1-2 न्यूमेरिकल्स. लेकिन मैक्सिमम 6 क्वेश्चंस तो थ्योरी क्वेश्चंस है ना. मैक्सिमम 6 क्वेश्चन विल बी थ्योरी, 2 क्वेश्चंस न्यूमेरिकल्स. सो इतना फोकस इसके ऊपर मत करो. फोकस ऑन द थ्योरी पार्ट. अरे गेटिंग दिस? जस्ट डू द स्मार्ट वर्क. नहीं तो आप न्यूमेरिकल्स पे फोकस करोगे और थ्योरी कुछ भी नहीं आएगा. ऐसा नहीं होना चाहिए. ओके, चलो हम वर्कशीट पे आते हैं. नाउ लेट्स ट्राई टू सॉल्व. द डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड फोकल लेंथ.
ऑप्टिकल सेंटर एंड ट्रू या फॉल्स? आई थिंक आप भी ये क्वेश्चन देखा ना, इट्स ट्रू स्टेटमेंट, यस ट्रू है. A concave lens always forms a magnified image. Concave lens हमेशा magnified image देता है क्या? True या false? Concave lens. Concave lens यानी ऐसा वाला lens, the diverging lens. So it does not give any magnified image. So मान लो पहली केस में अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट में होता है, if this is object at infinity, फर्स्ट रूल क्या है? If it is parallel to principal axis after refraction, ऐसा होगा ना वो. If it is parallel to principal axis, ऐसा रिफ्रैक्ट होगा. So पीछे ट्रांसवर्स करोगे, it will be focal length over here. In short, it is a false statement. Okay, ये हमेशा diminish image देता है, magnified image नहीं देता है. So option B is the right answer. ये कभी भी आपको magnified image नहीं देगा, concave lens. I hope ये सबको पता होगा, स्टडी किया होगा 10th स्टैंडर्ड में तो. Yes, पता है ना? That's good, Kashmira. Okay, chalo, very good all of you, very good everyone. The lens with both surface spherical inside, it's called concave, convex, 1 and 2, none of this. Both spherical surface inside, inside में ऐसा spherical है, inside spherical, इसे हम inside spherical बोलते हैं. So ये कौन सा लेंस है? Obviously it's a concave lens, ये concave lens है. Correct, that's right. So it's a concave lens. Very good all of you. Yes, Bhumi, what you have not understood, tell me. कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया? मैग्निफाइड इमेज वाला. सी कॉन्केव इमेज हमेशा डिमिनिश इमेज देता है. आई विल राइट द स्टेटमेंट ओवर हियर. कॉन्केव इमेज, फोर्थ क्वेश्चन, ये याद रख लो. कॉन्केव लेंस, सो कॉन्केव लेंस always forms diminished comma erect, so erect diminished virtual image. ओके, ये हमेशा ट्रू है. क्लियर है? भूमि, प्रियंका, प्लीज रिप्लाई. ये आप याद ही रखो, कॉन्केव इमेज हमेशा आपको डिमिनिश्ड, इरेक्ट और वर्चुअल इमेज ही देता है. वर्चुअल डिमिनिशन ये वाला. चलो ठीक है, सबको समझ में आया टिल क्वेश्चन नंबर 5? एवरीवन अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? सगळ्यांना कळालं व्यवस्थित? यस, दैट्स गुड, वेरी गुड, परफेक्ट. चलो अभी नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस फिर से मैं वो ही पूछूंगा, सबको 5 क्वेश्चन समझ में आए. Which of the following statement is true regarding a compound microscope? Compound microscope का कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? A compound microscope is made up of 2 convex lens, objective eyepiece, correct है? The objective has a smaller cross section and smaller focal length than eyepiece, correct है? मास्टर झोपून करायचं. Option D would be the right answer. Those statement correct है यानी all of the above. High magnification can be obtained by combined effect of 2 lenses, so all of the above is the right answer. मैं पैन सब लोग पहले mute था पे है क्या? All of तो you. मुतस खड़े. अब ठीक है, now all are unmute now. अभी आवाज आ रही है मेरी clearly? Are you able to hear me now clearly सबको? Yes. चलो next. The focal length of dash lens is positive. कौन सा लेंस का focal length positive है? सिंपल है, ये आपको साइन कन्वेंशंस पता होना चाहिए. देखो, मान लो सपोज दिस इज अ लेंस, से ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया. If a ray of light goes from rarer medium, if a ray of light is incident parallel to the principal axis, after refraction it passes through focus. So according to sign convention के हिसाब से अगर न्यूमेरिकल्स नहीं आए तो फिजिक्स का वेटेज कम होगा. सो वेटेज कम ही है ना, 8 क्वेश्चंस हो गए. रफली देयर विल बी 8 to 9 क्वेश्चंस. 25 मार्क्स का पेपर है, उसमें आप डिवाइड कर लो, फिजिक्स कितना होगा, बायो कितना होगा और केमिस्ट्री कितना होगा. So you just divide it. Roughly 8 questions आएंगे वो. So as per the sign conventions पता है ना. So this we consider as a y-axis. इसको हम x-axis consider करते हैं. Towards x-axis ये positive है, ये क्या है, negative x-axis. ये positive y and this is a negative y-axis. So this focal length, ये focal length कौन से साइड पे है बोलो? Focal length कौन से साइड पे है, राइट या लेफ्ट? पॉजिटिव x-axis की तरफ है या नेगेटिव x-axis की तरफ है? इट्स टुवर्ड पॉजिटिव ना. अरे फोकल लेंथ कौन से साइड पे है? पॉजिटिव साइड पे ना. दिस फोकल लेंथ इज टुवर्ड्स पॉजिटिव ना. सो कौन से लेंस का पॉजिटिव फोकल लेंथ होता है?
कॉन्वेक्स लेंस, हो गया सॉल्व। ऑप्शन सी, कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है। देखो कॉन्केव का मैं ड्रॉ करके भी दिखाता हूँ, कॉन्केव का भी दिखाता हूं मैं। मान लो ये कॉन्केव लेंस है, सपोज दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस, इफ अ रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्ज होगी। अगर इसको आप पीछे ट्रेस करते हो, सो दिस विल बी योर प्रिंसिपल फोकस एंड ये आपकी फोकल लेंथ। तो आप मुझे बोलो ये फोकल लेंथ कौन सी साइड पे है? इट इज टुवर्ड्स नेगेटिव या पॉजिटिव? कौन सी साइड पे ये? नेगेटिव। सो ये क्या होगा? नेगेटिव। यस, दैट वुड बी द नेगेटिव, करेक्ट। कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव, याद रखो। ओके, कॉन्केव का नेगेटिव, कॉन्वेक्स का। बायफोकल मतलब क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, यानी ये तो वो ऑप्शन तो गलत है, लेकिन बायफोकल का जो होगा ना, दिस विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस, यानी एक कॉन्वेक्स आएगा और एक कॉन्केव आएगा इन दिस वे। सो इसका फोकल लेंथ हम नहीं बोल सकते, इट कैन बी एनीवेयर, इट कैन बी चेंज, ये चेंज हो सकता है, ये राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है। अगर दो लेंस को कंबाइन किया, यानी एक सरफेस कॉन्केव और एक सरफेस कॉन्वेक्स, ऐसा। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स एंड एक कॉन्केव, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस वाला है, ये आपको नहीं है, सो इसका ये चेंज हो सकता है। आई हैव ऑलरेडी शेयर द पीडीएफ, मैंने जस्ट आप खुद ब्रांच को कॉन्टॅक्ट कर लो, रिस्पेक्टिव्ह ब्रांचला विचारा तुम्ही, मी ऑलरेडी सेंड केलेलं आहे, त्यामुळे तुम्ही एकदा विचारा त्यांना, कधीच सेंड केलंय मी। सो जस्ट कॉन्टॅक्ट टू देम, दे विल प्रोवाइड यू। ओके, मे बी दे, क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है, बट दे विल प्रोवाइड यू। ये समझ में आया क्या? वो बोलो पहले तो। ऋतुज, आई हैव ऑलरेडी सेंड ऋतुज। कॉन्वेक्स, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है? व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ कॉन्वेक्स लेंस? बोलो, हमेशा क्या होता है वो? दैट इज पॉजिटिव। ओके, नेक्स्ट, कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है? सो कॉन्केव का फोकल लेंथ हमेशा क्या होता है वो? इट्स नेगेटिव। क्लियर है? ये याद रखो, ये आपको थ्योरी में हुआ भी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। The incident ray passes without changing its direction when it passes through, अभी starting question था ये, so ये this would be the optical center. I think this is a repeated question ना, optical center. Is that okay? Clear है सबको? Everyone understood? Please reply. सबको समझ में आया? Simple है, ये repeat question है, so optical center would be the right answer. Yes, that's good. 7th एक्सप्लेन करा। अरे बघ, 7th मध्ये ये रूल याद रख लो, फॉर 7 क्वेश्चन यू हैव टू रिमेंबर दिस रूल। पहला रूल क्या है? कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और कॉन्केव का फोकल लेंथ क्या होता है? ये नेगेटिव होता है। कंसिडर दिस एज अ रूल, ये रूल है। ओके, ये आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, ये जो फोकल लेंथ है कॉन्वेक्स का, सो कॉन्वेक्स का फोकल लेंथ टुवर्ड्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, और कॉन्केव का फोकल लेंथ है ना, वो टुवर्ड्स नेगेटिव एक्स एक्सिस है। यस, ओके वेदांत। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये टेक्स्ट बुक में एज इट इज दिया है, ये मैंने खुद से मन से नहीं बोला, ये एज इट इज टेक्स्ट बुक में दिया है। सो ये आपको आना चाहिए, मतलब अगर एग्जाम होती बोर्ड की तो ये आपको पता होना चाहिए था। दैट इज माई कंसर्न। ठीक है, इज दैट ओके ऑल ऑफ यू? सबको समझ में आया टिल क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 8? कॉन्वेक्स पॉजिटिव, कॉन्केव नेगेटिव, परफेक्ट, दैट्स गुड। Which of the following statement is true statement? True statement बोल रहा है वो। Power of lens is positive. Power of lens is always positive. Power of lens is always negative. Power of convex lens is positive. Power of concave lens is positive. I think option C is right answer. क्यों? क्या रीजन है? बोलो, कौन बोलेगा? पावर का फॉर्मूला मैंने स्टार्टिंग में लिखा था, देखो अगर याद होगा तो। सो पावर ऑफ लेंस इज नथिंग बट रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर, याद है? सो रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर। किसका फोकस पॉजिटिव है? अगर ये फोकस पॉजिटिव है तभी पावर पॉजिटिव आएगी ना, हाँ या नहीं? अगर फोकस पॉजिटिव है तभी तो ये पावर पॉजिटिव आएगी। सो किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव है? कोणाचा फोकल लेंथ पॉजिटिव आहे? सांगा बरं, तुम्हीच सांगा। कॉन्वेक्सचा फोकल लेंथ पॉजिटिव्ह आहे, आत्ता सांगितलं। सो कॉन्वेक्सचा जर फोकल लेंथ पॉजिटिव्ह आहे तर त्याची पॉवर पॉजिटिव्ह नसेल का? 100% असेल ना।
So focal length of convex lens is positive, so that's why इसका पावर, उसका पावर भी क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा. सिंपल. That's right, रुनाली, करेक्ट. सबको समझ में आ रहा है? देखो फिर से एक बार परत एकदा सांगतो. फोकल लेंथ कोणाचा पॉझिटिव्ह आहे? कोणाचा? फोकल लेंथ कुठल्या लेन्सचा पॉझिटिव्ह असतो? कॉन्व्हेक्सचा. सो त्याचा पॉवर पण पॉझिटिव्ह असणार. का? बिकॉज दे आर इन्व्हर्सली प्रोपोर्शनल. जर पॉवर पॉझिटिव्ह असेल, जर फोकल लेंथ पॉझिटिव्ह असेल तर त्याची पॉवर पण पॉझिटिव्ह असेल ना. ह्याचं उलट म्हणजे काय? कॉन्केव्ह लेन्सचा फोकल लेंथ कसा आहे? कॉन्केव्ह लेन्सचा फोकल लेंथ कसा आहे? निगेटिव्ह आहे ना. तर त्याचा पॉवर पण काय येईल? त्याचा पॉवर पण निगेटिव्ह येईल. झालं सॉल्व. कळतंय का? बोला हो किंवा नाही. समजलं का सगळ्यांना? प्लीज रिप्लाय. ओके, व्हेरी गुड, परफेक्ट. येस, ओके. Okay, crystal clear. That's good. Yes, okay. Focal length is measured in meter, so power of lens is measured in dash. Diopter. Kilometer, millimeter, centimeter लिहू नका. That is the diopter. Unit of power of lens. So power of lens is defined as reciprocal of focal length in meter. And what is the unit of power over here? So power का जो unit होता है, that is the diopter. ओके, जिसका सिंबल हम डी लिखते हैं, यानी 5D 4D. सो पावर का जो सिंबल होता है, द यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस, उसका सिंबल कैपिटल डी होता है. दिस इज द सिंबल. सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर. दैट्स राइट अंजलि, करेक्ट है. यस, ऑल ऑफ यू, एवरीवन, मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैड गिवन राइट आंसर्स. करेक्ट है. सब लोग बोलो मुझे, ये 5 क्वेश्चन समझ में आ गए क्या? फ्रॉम 5 to 10 सब क्वेश्चन क्लियर है? डायोप्टर इनवर्स नहीं लिख सकते हम. वी कांट राइट डायोप्टर इनवर्स. हम नहीं लिख सकते. वो डायोप्टर यूनिट होता है. परफेक्ट. ओके आर्या, दॅट्स गुड. 9th परत सांगा. ओके, मला एक सांगा 9 क्वेश्चनचं, जे कोणाला डाऊट असेल, कुठल्या लेन्सचा फोकस पॉझिटिव्ह आहे सांगा. परत सांगतो मी. सो पॉवर ऑफ लेन्स इज रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ. कुठल्या लेन्सचा फोकल लेंथ पॉझिटिव्ह आहे? कुठल्या लेन्सचा फोकल लेंथ पॉझिटिव्ह आहे? कॉन्व्हेक्स, बरोबर. सो फोकल लेंथ ऑफ कॉन्व्हेक्स काय असतं? पॉझिटिव्ह ना. तर पॉवर पण पॉझिटिव्हच येईल ना. पॉवर पण काय येईल? पॉझिटिव्ह येईल. हो किंवा नाही? बरोबर आहे. समजा एक्स ची व्हॅल्यू मी लिहिली. सपोज इफ आय कन्सिडर एक्स इज इक्वल टू हाफ. सो +2 आहे ना. 1/+2 म्हणजे एक्स काय येईल? 0.5 येईल ना. कळतंय का? बघा, एक्स 1/+2 आहे, हे +2 म्हणजे एक्स ची व्हॅल्यू काय येईल? +0.5 येईल ना. का मध्येच मायनस होईल? ते अशी अचानक मायनस तर नाही होत ना. नहीं, क्वेश्चन इजी है वेदांत. अरे 10th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन एमसीक्यू पैटर्न क्या डिफिकल्ट होगा? ऐसे ही क्वेश्चन हो गए वो. yes, for SSC and CBSE like chapter is same. That's right, Atharva, it's correct. Also for ICSE also. आता क्लियर आहे? समजलं 9th 1? आता सगळ्यांना कळालं का? 9th 1 झालं, समजलं? ओके, परफेक्ट. चलो नेक्स्ट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The magnification produced by convex lens is positive or negative depending on distance of object. True या false? डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की वजह से वो जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है. ट्रू है या फॉल्स है? 100% ये स्टेटमेंट ट्रू है. फॉल्स क्यों होगा वो? बोलो मुझे. 100% ट्रू स्टेटमेंट है ना ये. मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नेगेटिव डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस. मान लो आपको ये रे डायग्राम याद है क्या आपको? टेल मी. सपोज दिस इज अ फोकल लेंथ, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है. अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे होता है, पहला रूल, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस. सेकेंड रूल, इफ अ रे ऑफ लाइट पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर, वो स्ट्रेट पाथ होता है. इसका अगर आप पीछे ट्रेस करते हो तो ये इरेक्ट इमेज आपको देती है. डू यू रिमेंबर दिस रूल? इरेक्ट, ये इरेक्ट है. सो अगर इमेज इरेक्ट होती है ना, इफ द इमेज इज इरेक्ट, ये इमेज इरेक्ट है, याद है ना. अगर इमेज इरेक्ट है ना तो उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव होता है. लेकिन आपको ये भी डायग्राम याद होगी, अगर इमेज इन्वर्टेड है, सो इफ द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, से सपोज व्हाट यू से, ये 2f1, ये f1 हो गया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू फोकस, ये क्या आएगा? दिस विल बी f2, और यहाँ पे क्या आया? दिस विल बी 2f2, बराबर. सेकेंड रूल, if a ray of light passes through focus after refraction, it will become parallel to principal axis. So यहाँ पे आती है वो इमेज behind 2f2. याद है क्या ये डायग्राम?
ये इन्वर्टेड है ना, दिस इज इन्वर्टेड, याद करो। इन्वर्टेड होती है तो उसका मैग्निफिकेशन नेगेटिव होता है। यानी किसके ऊपर डिपेंड है ये? इट डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर डिपेंड है वो। यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बड़ा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस छोटा है, सो ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस पर उसका मैग्निफिकेशन पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है। वेदांत, वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस ऑफ रे डायग्राम्स ओनली। ये रे डायग्राम्स के ही क्वेश्चंस है। दिस आर द क्वेश्चंस ऑफ रे डायग्राम्स ओनली, वेदांत। कहां पे कर्व लिया मैंने? अरे ये कर्व नहीं है, ये आप स्केल से निकालोगे ना डायग्राम, सो इट इज अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है, ऐसा होता है ना वो स्ट्रेट लाइन। सो आप स्केल से निकालोगे वो डायग्राम आ जाएगी आपको, कर्व वगैरह नहीं होता है। नहीं, ऐसा क्वेश्चंस नहीं होगा। देयर विल बी रे डायग्राम एंड देन क्वेश्चंस। ये आपको टेस्ट में हो सकता है, लेकिन रे डायग्राम आपको 100% अच्छे से करना है। ओके, रे डायग्राम तो आपको करना है, कोई भी क्वेश्चन आने तो आपको आना चाहिए वो। रे डायग्राम इज इंपॉर्टेंट। यस अथर्व, टेल मी एनी डाउट? सबको क्लियर है? एवरीवन अंडरस्टूड दिस पार्ट? ये आया समझ में? चलो, वेरी गुड। नेक्स्ट, what will be the effective power of two lenses in contact? effective power कितना होगा? P1 minus P2, P1 plus P2, P1 into P2, ऑप्शन बी आएगा। अरे ये फॉर्मूला है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज का फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में दिया है, 1/f1 प्लस 1/f2। व्हाट इज 1/f? 1/f को हम P बोलते हैं, 1/f1 क्या होगा? दैट वुड बी P1, और 1/f2 क्या होगा? दैट इज P2। बीच में प्लस साइन है, सो प्लस साइन एज इट इज। So your ultimately answer will be P is equal to P1 plus P2. हो गया solve. This is your final answer. Aditi, I have already shared this PDF. मैंने already share किया है वो PDF. I have already shared that. Ray diagram मतलब ये नहीं क्या 6 ray diagrams convex के. If a object is at infinity, अगर object infinity पे होता है तो image कहाँ पे होती है? Image is at the focus. साइज होते हैं हाईली डिमिनिश। 6 रे डायग्राम्स कॉन्वेक्स मिरर कॉन्वेक्स लेंस के, एंड 2 रे डायग्राम्स ऑफ कॉन्केव लेंस। हाँ, रे डायग्राम आपको निकालने को नहीं आएगा, डोंट वरी। आपको सी एक एक मार्क के क्वेश्चन है, वो रे डायग्राम क्यों पूछेंगे? वो एक मार्क के लिए दे विल नॉट गोइंग टू ड्रॉ, वो आपको नहीं पूछेंगे। रे डायग्राम ड्रॉ करने को कम से कम 3 मार्क्स का वेटेज होता है टू ड्रॉ अ रे डायग्राम। Yes, Dhananjay, I will upload it with annotations. देखो, 2 thin lenses, अगर 2 lenses कांटेक्ट में होते हैं ना, तो उसके लिए ये फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। लेकिन अभी मैंने बोला, यहाँ पे भी लिखा है, देखो P का फॉर्मूला क्या है? 1/f। सो 1/f मतलब P हो गया, 1/f1 मतलब P1 हो गया, 1/f2 मतलब P2 हो गया। सो आपका आंसर क्या है? P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। हो गया सॉल्व। Understood all of you? Please reply. Everyone got it? अभी ये बोलो, the focal length of convex lens, concave lens is negative. True. किसी ने false बोला ना तो मैं बहुत मारने वाला हूँ। Yes, so answer is true ना। concave lens का focal length negative होता है। और यहाँ पे लिखा है, सबसे important बात, open your eyes and see over here. यहाँ पे लिखा है मैंने, concave lens का focal length negative होता है। So it's a true statement. क्वेश्चन 15 आई एम नॉट सीइंग ओवर हियर। एक मिनट, जस्ट वेट। आपको क्वेश्चन 14 का मैं ऑप्शंस बोलता हूँ, 1 मिनट, गिव मी 1 मिनट। यहाँ पे होगा, पीडीएफ में है वो। सो देखते हैं इसमें क्वेश्चन 14 दिख रहा है क्या? यस, दिख रहा है आपको? फाइंड द ऑड मैन आउट। कंपाउंड माइक्रोस्कोप, कैलिडियोस्कोप, simple microscope, astronomical telescope. What is the answer? So answer to this question is option B. Yes, option B, कैलिडियोस्कोप, ये जो आंसर है, this is the odd man out. Okay? रीजन क्या? रीजन है, कैलिडोस्कोप में मिरर यूज किया जाता है, लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप में हम लेंसेस यूज करते हैं। ओके, दैट इज द रीजन। इन सभी माइक्रोस्कोप में या फिर टेलीस्कोप में हम लेंस यूज करते हैं,
लेकिन इसमें क्या यूज होता है, कैलिडोस्कोप में मिरर यूज होता है. यस, 3 मिरर्स अरेंज एट सम पर्टिकुलर एंगल्स. एक प्रॉपर एंगल के साथ वो एडजस्ट करते हैं और वो आपको, दैट्स व्हाई दैट इज ऑर्नमेंट आउट. सिंपल था ये, आया होगा समझ में. तो चलो, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन 15. To place an image of a same size as that of the object with the help of convex lens, the object should be placed. इस वजह से बोला था कि आपको रे डायग्राम्स ये करना है. अगर मुझे इमेज सेम साइज की चाहिए तो मैं ऑब्जेक्ट को कहां पे रखूंगा, बोलो. ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, 2F1. ये निकाल के ही देता हूं मैं आपको, मतलब ये डायग्राम आपको याद होगी या फिर होनी चाहिए. से दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या हो गया, लेट अस कंसीडर दिस इज अ F1, लेट अस कंसीडर दिस इज अ 2F1. ओके, सेम डिस्टेंस पर यहाँ पे क्या होगा, लेट अस कंसीडर दिस एज अ F2. यहाँ पे क्या है, लेट अस कंसीडर F2, और यहाँ पे क्या होगा, दिस विल बी 2F2. ड्रॉ द डायग्राम, निकालो डायग्राम. इफ अ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ 2F1, गिव द नेम A, B, Taylor rule, parallel to principal axis after refraction passes through focus. Second rule, if a ray of light passes through focus, okay, passes through focus after refraction, it will be parallel. Okay, so यहाँ पे A था, so this will be A dash. यहाँ पे क्या आएगा, B dash. Before lens show the arrows, lens के बाद आपको arrows निकालने हैं. हिमेश, उसका आंसर कैलिडोस्कोप है. ओके हिमेश, सी दिस क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर कैलिडोस्कोप है. माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द लेंसेस, और कैलिडोस्कोप में हम क्या यूज करते हैं, वी यूज द मिरर्स. सो दैट्स व्हाई वो ऑड वन आउट है. रे डायग्राम समझ में आ गई. सो दिस इज अ 12th क्वेश्चन. ये 12th क्वेश्चन. रे डायग्राम्स आपने सीखा है 10th स्टैंडर्ड में, ऑल 3 बोर्ड्स, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड. पता है आपको ये, हाँ, दैट्स गुड, परफेक्ट. चलो, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं. क्वेश्चन 16. द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 25 सेंटीमीटर इज. क्या होगा, पहले तो ये 25 सेंटीमीटर दिया है. कितना दिया है, 25 सेंटीमीटर. मीटर में करना है, कैसे करते हो, मीटर को डिवाइड बाय 100 ना, सेंटीमीटर को मीटर में करना है, डिवाइड बाय 100. 1 जा 4 जा. निकालो पावर ऑफ लेंस. क्या फॉर्मूला है, द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर. फोकल लेंथ पहले मीटर में लेना है. 1 अपॉन कितना है फोकल लेंथ, 1/4 मीटर. ये 4 ऊपर जाएगा ना, सो आंसर विल बी 4 डायोप्टर. सो है क्या आंसर, ऑप्शन ए. हो गया सॉल्व. सिंपल है. देखो, फोकल लेंथ को पहले सेंटीमीटर में था, उसको मीटर में कन्वर्ट किया. क्यों किया मैंने कन्वर्ट मीटर में, क्योंकि फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि फोकल लेंथ आपको मीटर में लेना है, ऐसा वो फॉर्मूला बोल रहा है, इस वजह से मीटर में किया. बाकी तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया और मैथमेटिक्स किया, 4 को ऊपर ले लिया, दैट इज 4 डायोप्टर. सो ऑप्शन ए वुड बी द राइट आंसर. As one grows old, ciliary muscle becomes, as one grows old, ciliary muscles become weak. So इसका आंसर है ट्रू. आंखों की रोशनी कम होती है. द पावर ऑफ द आई बिकम्स ओल्ड, मतलब द पावर ऑफ द आई बिकम्स वीक एज यू ग्रो ओल्ड. सो ट्रू है ना, ये तो पता है, मतलब कॉमन सेंस क्वेश्चन है. रियल इमेज इन्वर्टेड वर्चुअल इमेज इरेक्ट. यस, दिस पोर्शन इज डिलीटेड. ये डिलीटेड में आता है, तो ये क्वेश्चन स्किप भी किया तो भी चलेगा, ये डिलीटेड में आएगा वो. चलो ठीक है. रियल इमेज अगर इन्वर्टेड है तो वर्चुअल इमेज क्या है, व्हाट वुड बी द वर्चुअल इमेज, दैट वुड बी द इरेक्ट इमेज. दैट्स राइट. यस, आई का पार्ट डिलीटेड स्टेट बोर्ड को. लाइट रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस फॉलिंग ऑन अ कॉन्केव लेंस डैश फ्रॉम वन अनदर आफ्टर रिफ्रैक्शन. पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑन अ कॉन्वेक्स लेंस, go away from one another after refraction. ऑप्शन ए होगा, go away from one another. अरे अभी तो दिया ना मैंने. सपोज ये कॉन्केव लेंस है, अगर इसके ऊपर आपने पैरेलल रेज को सेंड किया, इफ आई इंसिडेंट अ पैरेलल रेज ओवर हियर, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये डाइवर्स होगा ना, इट विल बी डाइवर्स ना. एसएसटी मराठी का लेक्चर कब है, आर्यन, आई डोंट नो दैट. करेक्ट रे डायग्राम आइडेंटिफाई करने को आ सकता है, दैट्स राइट पलक.
वो आ सकता है टू आइडेंटिफाई द करेक्ट रे डायग्राम। रे डायग्राम आप बहुत अच्छे से करना, ओके। इफ यू आर स्टडीइंग द लेंसेज पार्ट ना, सबसे इंपॉर्टेंट पहला उसको ही फोकस कर लो, रे डायग्राम्स अच्छे से कर लो, वो सभी रे डायग्राम्स, कॉन्वेक्स के 6 रे डायग्राम से और कॉन्केव के 2 रे डायग्राम से, सो वो आपको अच्छे से आने चाहिए। A concave lens always forms a virtual image. True or false? Concave lens always forms virtual image. अभी देखा है। That's a true statement. ये true है। We have already seen that. Concave हमेशा virtual देता है। इसका उल्टा क्वेश्चन है शायद से। Light rays parallel to principal axis. यहाँ पे concave lens था, यहाँ पे convex है। यहाँ पे go away ऑप्शन था, यहाँ पे क्या आया? Come together ऑप्शन will be there. Correct है। उल्टा क्वेश्चन है ये ना। क्वेश्चन 19 and 21 they are opposite to each other. Find the odd one out. Simple microscope, compound microscope, telescope, hypermetropia. Hypermetropia is nothing but that is a defect in our eyes. ये डिफेक्ट है ना, डिजीज नहीं बोल सकते, दिस इज अ डिफेक्ट इन आवर आईज। आई डिफेक्ट, ओके। सो हाइपरमेट्रोपिया। बाकी तो ये इंस्ट्रूमेंट है। सिंपल माइक्रोस्कोप इज इंस्ट्रूमेंट, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इंस्ट्रूमेंट है, टेलीस्कोप भी क्या है? इंस्ट्रूमेंट है, वो दैट इज द इंस्ट्रूमेंट। अरे वो देखना पड़ेगा जोइस, देखना पड़ेगा वो पुणे ईस्ट वेस्ट तालुका क्या होगा वो देख लो ना, गूगल पे होता है वो, देखो आप हड़पसर का तालुका क्या है। सो मेरे यहाँ का तो हवेली, हम तो हवेली डालते हैं, लेकिन आप देख लो वो हवेली, हाँ मी पण हवेलीच टाकतो। सो फॉर पुणे आय हाँ हवेलीच लिख जोइस, आप हवेली लिखो, ईस्ट वेस्ट नको टाकू, हवेलीच टाक, काय नाही होत, तुझी परीक्षा घेतली जाईल ते। हाँ पुणे ईस्ट वेस्ट नका टाकू असं काही, बट चलो ठीक है। नेक्स्ट, द पावर ऑफ डैश लेंस इज नेगेटिव। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा है? व्हाई इट इज नॉट सिलेक्टिंग? हाँ आया। पावर ऑफ डैश लेंस इज नेगेटिव कॉन्केव, ये बोला है अभी मैंने। हाइपरमेट्रोपिया भी डिलीट है सीबीएसई को, दैट्स राइट। आई लिव इन कात्रज एरिया, सो कात्रज माहिती आहे का तुम्हाला? कात्रजला राहतो मी, माहिती असेलच। 22 हे बघ, हे सिंपल मायक्रोस्कोप, कंपाऊंड मायक्रोस्कोप आहे ना, हे सगळे काय? दिस इज द इन्स्ट्रुमेंट, सो हे सगळं इन्स्ट्रुमेंट आहे। आणि हायपरमेट्रोपिया काय आहे? हे एक डिफेक्ट आहे, दिस इज अ डिफेक्ट इन अर आईज, ओके। हे डिफेक्ट असतं। भारतीय विद्यापीठ कात्रज, दैट्स राइट। भक्ति आई डोंट नो, फिर आई डोंट नो दैट। ओके हाँ। सो आईसीएसई बोर्ड को वो ईस्ट और वेस्ट पूछ रहे, सो मुझे नहीं मालूम आईसीएसई के लिए क्या होगा, पण जनरली आम्ही तर हवेलीच टाकतो, तुम्ही पण हवेलीच टाका। नाहीतर एकदा गुगलवर सर्च करा पहिले की आपण कुठल्या तालुक्यामध्ये येतो, गुगलवर सर्च करा आणि मग फॉर्म भरा, ओके। हाँ गूगल किया तो हवेलीज, हाँ ओके। बालाजी नगर इट्स वेस्ट पुणे, ओके ओके। एक बार गूगल पे देखो, अरे पण टाका ना काहीतरी, कुठेतरी जाऊन एक्झाम द्यायची तुम्हाला, सो काय एवढा विचार करताय? That's right, Raki. It's correct. सीईटी फॉर्म, रूपेश आई एम सीईटी के फॉर्म में बोल रहा हूं मैं। अरे वो बाकी काम बाद में देखेंगे, पहले तो वर्कशीट तो सॉल्व कर लो। वी विल डिस्कस इट आफ्टरवर्ड्स। चलो वर्कशीट के आंसर्स बोलो। द पावर ऑफ डैश लेंस इज नेगेटिव कॉन्केव, ये ठीक है। चलो ये मैंने बोला था ना, इमेज आपको अच्छे से करनी है, इमेज रे डायग्राम्स के क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए। When an object is placed between optical center and principal focus in front of convex lens, the image is erect and enlarged। ये डायग्राम मैंने निकाला था, मतलब देखा होगा तो। ए ऑप्शन है ना, ऑप्टिकल सेंटर और इसके बीच में ये कॉन्वेक्स लेंस है। सपोज दिस इज अ कॉन्वेक्स लेंस, यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे आपका फोकस है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्ट है। अभी तो निकाला ना, ये निकालो फर्स्ट रूल। व्हाट इज द फर्स्ट रूल?
पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, passes through focus, यानी F2 से पास होगा. If a ray of light passes through optical center, straight जाएगा वो. मेरा तो ऑप्टिकल सेंटर से नहीं पास हुआ, ठीक है. इसका पीछे ट्रेस करो क्या? सो दिस विल बी द इमेज ना. ये इमेज कैसी होगी? इट विल बी इरेक्ट ना. इरेक्ट और एनलार्ज, ये इसका आंसर है. इरेक्ट एंड एनलार्ज. पावर ऑफ डैश लेंस इज नेगेटिव. रुचा, कौन से लेंस का पावर नेगेटिव होता है? तो कॉन्केव लेंस का नेगेटिव होता है, कॉन्वेक्स का पॉजिटिव होता है. ओके रुचा. यस दैट्स राइट, वर्चुअल भी होता है. आर्या करेक्ट, इट्स वर्चुअल. इट वर्चुअल आल्सो. यू डोंट हैव टू स्टडी द आइज पार्ट. आपको आइज पार्ट स्टडी नहीं करना है श्रावणी. यू डोंट हैव टू स्टडी द आइज पार्ट. हाँ मैं वही बोल रहा था, क्वेश्चन रिपीट है क्या? This question is repeated. 23, 24. The power of lens with focal length 20 centimeter is. जिसका focal length 20 सेंटीमीटर है उसका पावर कितना होगा? ये भी रिपीट है क्या? नहीं. निकालो पावर. सो फोकस कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर. मीटर में कन्वर्ट कर लो, 20/100 आएगा मीटर. सो 1 जा 5 जा. क्या है फॉर्मूला पावर ऑफ लेंस का? रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर. करो सॉल्व. सो 1 ये 1/5 आएगा, ये 5 ऊपर जाएगा. सो आपका आंसर विल बी 5 डायोप्टर. सो आंसर इज ऑप्शन बी. 5 डायोप्टर इज द राइट आंसर. Both the surface of most lens are a parts of square, sphere, cone, cylinder. No, there will be no any questions on eyes. Eyes का portion deleted है, आपको करना ही नहीं है वो. Eyes के related questions. You don't have to do that. So sphere है, मतलब पता है आपको. It's a sphere. ये पता होना चाहिए. Lenses are used in dash ways. Spectacles, telescope, सभी में यूज होता है ना. सभी में यूज होता है lenses. Okay. All of this is the right answer. Correct है. Convex is a converging lens. Concave is a diverging lens. बोलो हाँ या नहीं. Convex अगर converging है तो concave क्या है? Concave और diverging lens हो गया ना. Yes, option B is the right answer. Next. An optical device used by watch repairers is compound, telescope, simple, spectrometer. Watch repair कौन सा डिवाइस यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप. कंपाउंड माइक्रोस्कोप नहीं लेते वो. कंपाउंड माइक्रोस्कोप हम स्कूल में यूज करते हैं, लैब में यूज किया जाता है. वो प्रैक्टिकल लैब होती है ना, आपने देखा है ना कंपाउंड माइक्रोस्कोप? हैव यू सीन द कंपाउंड माइक्रोस्कोप? 26 क्वेश्चन क्या? एक मिनट. 26 का आंसर देखो, यहाँ पे सोल्यूशन है. सो आंसर इज 5B. नहीं देखा है क्या? यस देखा है कंपाउंड में. अरे स्कूल में 10th स्टैंडर्ड 9th स्टैंडर्ड में देखा होगा. इट इज यूज्ड टू सी द स्लाइड ना. वो पैरोमोशियम एल्गी के स्लाइड देखने को यूज किया जाता है. वो नहीं देखा क्या? एक काम कर ले, 31 को नाम चेंज करते हैं. ओके ये फिर से रिपीट हो गया, क्या मालूम रिपीट क्यों. द फोकल लेंथ ऑफ डैश लेंस. अभी इस नेगेटिव को निकालते हैं हम, इसको चेंज करते हैं पॉजिटिव. इसको चेंज करो मैं. सो किसका पॉजिटिव है अभी? आई हैव चेंज द क्वेश्चन. कॉन्वेक्स. ओके 32. अभी उल्टा फोड़ जाओ. द फोकल लेंथ ऑफ अ लेंस विद पावर 2.5D. अभी पावर दिया उन्होंने 2.5D. फॉर्मूला क्या है? सो पावर इज 1 फोकल लेंथ क्या है? इन मीटर. सो देयरफॉर फोकल लेंथ इन मीटर क्या होगा? 1 पावर. देयरफॉर फोकल लेंथ कितना आएगा? 1/2.5. दैट इज 10/25 ना. सो 5 2 जा 5 5 जा. सो फोकल लेंथ कितना आएगा? 0.4 इन मीटर, यानी कितना सेंटीमीटर आएगा? 40 सेंटीमीटर. सो आंसर मीटर में तो मीटर में रखो 0.4 मीटर, और सेंटीमीटर में वो 40 सेंटीमीटर आएगा. बराबर हाँ या नहीं बोलो. ये समझ में आया क्या सब लोग? एवरीवन क्लियर है? यस. A convex lens always forms a virtual image. True या false? Always forms a virtual image. False है.
रियल इन्वर्टेड इमेज भी देता है ना वो, इट गिव्स द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑल्सो। ऑलवेज नहीं बोल सकते हम, सिर्फ एक केस में वर्चुअल देता है, जो कि ऊपर वाली केस में, इस केस में देखो, सिर्फ इसी केस में इमेज केस ये, इन दिस केस द इमेज है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इमेज, इट इज वर्चुअल कॉमा वर्चुअल इन इरेक्ट, वर्चुअल इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, बराबर है। कॉन्केव आपको कभी रियल इमेज नहीं देगा भरत, कॉन्केव विल नेवर गिव यू रियल इमेज, हमेशा याद रखो कॉन्केव हमेशा क्या देगा, इट विल ऑलवेज गिव अ वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, वर्चुअल एंड इरेक्ट कॉन्केव ऑलवेज, हाँ दिस इज ऑलवेज, ये ऑलवेज ट्रू है। फिजिक्सला किती लेसन आहे, सो स्टेट बोर्डला ग्रॅव्हिटेशन आहे, स्टेट बोर्ड के हिसाब से हम सिलेबस कवर करें ना, सो ग्रेविटेशन इज देयर, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, नेक्स्ट लेक्चर में हम वही लेने वाले, कल के लेक्चर में हीट टॉपिक है, हीट, रिफ्रैक्शन, लेंसेस एंड स्पेस मिशन, सो 5 टॉपिक्स आर देयर। फिजिक्स के बोल रहा हूं मैं, सिर्फ फिजिक्स के, आई एम सेइंग ओनली अबाउट फिजिक्स, ग्रेविटेशन, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हीट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लेंसेस एंड स्पेस मिशन। स्पेस मिशन नव्हता आयसीएससी ला, सिंपल आहे तो टॉपिक, इट्स व्हेरी इझी टॉपिक, बघा तुम्हाला येईल ते, मी एक्सप्लेन करेलच तो टॉपिक तुम्हाला, बट येऊन जाईल तुम्हाला स्पेस मिशन, इट्स रिलेटेड टू द सैटेलाइट एंड ऑल दैट कंसेप्ट इज देयर, जीके का टॉपिक है वो, इट्स अ जनरल नॉलेज टॉपिक, स्टोरी बुक की तरह आप रीड कर लो, आ जाएगा। डिलीटेड सिलेबस आपको कहां से मिलेगा, यूट्यूब से, यू विल गेट अ यूट्यूब, आपको यूट्यूब से वो डिलीटेड सिलेबस मिल जाएगा। प्लानो कॉन्वेक्स मीन्स एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कॉन्वेक्स, एक सरफेस प्लेन और एक सरफेस कॉन्वेक्स, ऐसा आएगा वो प्लानो, ऐसा इन दिस वे, सो एक सरफेस प्लेन एक सरफेस कॉन्वेक्स, सो इसे हम प्लानो कॉन्वेक्स बोलते हैं, वेयर वन सरफेस इज प्लेन और दूसरा सरफेस क्या है, एक सरफेस कॉन्वेक्स है। नहीं ऐसा नहीं होता है मोक्ष, यूट्यूब हाफ नॉलेज नहीं देता है, कुछ कुछ अच्छे हैं। टुमारो आई विल टेक, एक काम कर लो, मैं चैप्टर्स के नाम लिख के दूं क्या आपको, जस्ट टेल मी सीटी का जो सिलेबस है, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, जस्ट क्लियर इट फ्रॉम योर साइड, मेरे साइड से क्लियर है, सीटी का सिलेबस 10 स्टेट बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से ट्रू या फॉल्स, ट्रू है, बराबर, हाँ करेक्ट है, हाँ मतलब आप भी क्लियर हो ना, यू आर ऑल्सो क्लियर, सो टॉपिक में मैं आपको आप भी लिख के दे रहा हूं, सो द वेरी फर्स्ट टॉपिक ग्रेविटेशन, पहला टॉपिक ग्रेविटेशन, फिर आता है इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जो कि स्टेट बोर्ड के सिलेबस में 4th टॉपिक है, इफेक्ट्स ऑफ करंट, द मोस्ट हेटेड टॉपिक हीट, जो मुझे पसंद ही नहीं है टॉपिक हीट, फिर आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, कल ही हमने लिया था, आज हम ले रहे हैं वो, दैट इज अ लेंसेस, एंड चैप्टर नंबर 10 दैट इज अ स्पेस मिशन, ये सभी फिजिक्स के टॉपिक है। इसमें से हमने ये टॉपिक कवर कर लिया है, नहीं इसमें से हमने रिफ्रैक्शन कवर कर लिया है और लेंसेस आज कवर हो जाएगा। हीट समवट पार्ट इज रिलेटेड टू द केमिस्ट्री ना, ये आईसीएससी स्टूडेंट्स को पसंद आएगा वो, क्योंकि आईसीएससी में आपने स्टडी किया होगा लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, रिमेंबर लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, Q इक्वल टू ml का फॉर्मूला, ये आईसीएससी वाले को पसंद आएगा ये टॉपिक, मोस्ट ऑफ द केमिस्ट्री का पार्ट है, सो इसी पर वो हीट टॉपिक है, इट्स अ सिंपल इजी टॉपिक, लेकिन प्योर फिजिक्स में नहीं आता है वो, ये प्योर फिजिक्स के टॉपिक है। एक मिनट क्या क्वेश्चन है, जस्ट 1 मिनट, क्या क्वेश्चन था, ऊपर जा रहा हूँ, व्हाट इज द फोकल लेंथ इफ पावर लेंथ इज 3, हाउ टू फाइंड इट, अगर पावर दिया है 3 डायोप्टर, फोकल लेंथ कितना आएगा, निकालो ना, कैसे फाइंड करोगे आप, सो पावर का क्या फॉर्मूला है, 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर, ये फॉर्मूला है, सो 3 विल बी 1 अपॉन फोकल लेंथ, सो फोकल लेंथ क्या आएगा 1 अपॉन 3, सो कितना आएगा 1 अपॉन 3 मतलब 0.33 रिकरिंग आएगा,
दिस इज इन मीटर, मल्टीप्लाई बाय 100 करोगे तो सेंटीमीटर में आएगा, सो 33.3 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। हो गया सॉल्व। टुमारो आई विल टेक द टॉपिक, कौन सा टॉपिक ले लूं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट लेता हूं, बिकॉज दिस टॉपिक इज अगेन कॉमन टू सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड एंड स्टेट बोर्ड। सीबीएसई को करंट इलेक्ट्रिसिटी था, आईसीएसई को भी करंट इलेक्ट्रिसिटी था, और स्टेट बोर्ड को इफेक्ट्स ऑफ करंट है। राइट हैंड थंब रूल याद है, राइट हैंड थंब रूल करके आना है कल आपको, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, ये सब पढ़ के आना है। बस फिजिक्स के सिर्फ इतने ही चैप्टर्स है, ओनली दिस टॉपिक्स आर फिजिक्स, और इसमें से कितने क्वेश्चंस आएंगे, रफली 8 to 10 क्वेश्चंस, इतने सारे टॉपिक्स है। क्रिस्टर्ड और एस्टर्ड वाला, दैट्स राइट आयुष। ओके शालमली। चलो नेक्स्ट हम करते हैं। अकॉर्डिंग टू द साइन कन्वेंशन, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज नेगेटिव। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होता है, इट्स ऑलवेज नेगेटिव ना, ऑप्शन बी ऑलवेज नेगेटिव। कोई भी रे डायग्राम ले लो, टेक विच एवर रे डायग्राम, शुड आई रब दिस, ये रब करता हूं, ये तो हमारे इसमें नहीं, ये क्वेश्चन में कोई भी रे डायग्राम से, सपोज इफ दिस इज अ डायग्राम, सो हम ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस करते हैं ना, वी ऑलवेज प्लेस ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। हम हमेशा इसको कहाँ पे प्लेस करते हैं, वी ऑलवेज प्लेस टू द लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड क्या होता है, व्हाट इज लेफ्ट साइड, नेगेटिव एक्स एक्सिस ना, लेफ्ट साइड इज नेगेटिव, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव होता है। नहीं ऐसे शर्वरी, देयर इज नो एनी सच ट्रिक टू लर्न द फॉर्मूले, कोई भी ट्रिक नहीं होता है फॉर्मूला लर्न करने के लिए, कोई भी ट्रिक नहीं होता है आपको, यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दैट, आपको लर्न करना ही करना है वो, देयर इज नो सच ट्रिक। ओके, सो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये याद रखो, ये फॉर्मूले में चाहिए तो लिख के देता हूं, आई विल राइट ओवर हियर, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव, ओके, एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये याद रखना, ऑलवेज ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रू, कोई भी न्यूमेरिकल आने दो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव। श्रेया भी सिंपल है, वो आ जाएगा आपको श्रेया, डोंट वरी, डोंट टेक एनी टेंशन, यू विल गेट इजी। ओके, नाउ यू आर अ कॉमर्स स्टूडेंट, सो आ जाएगा धीरे धीरे, आप सिर्फ टॉपिक्स रीड कर लो अच्छे से, आ जाएगा। पूरा 10th का सिलेबस रिवाइज कर लो, स्पेशली द साइंस एंड मैथमेटिक्स पार्ट, वो अच्छे से प्रिपेयर कर लो। Okay, the lens which is thicker near the center and compared to the edges, so ऐसा लेंस जो बीच में ठीक है, so बीच में ठीक है और यहाँ पे थीन है, so कौन सा लेंस होता है वो, इट्स अ कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन बी ना, ये तो डेफिनेशन है एक्चुअली, दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ओनली, द लेंस which is thick in the middle and thin at the edges, then such lens is nothing but that is called as a convex lens, उससे हम क्या बोलते हैं, that is called as a convex lens। क्लियर है? Yes, for inverted image, height is negative. Okay. For inverted image, if the height of image, अगर height of image negative आती है, that means the image कैसी होती है वो? Image is inverted. And for erect image, height is positive. इसका उल्टा, अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव आता है, सो दैट मीन्स इमेज कैसी वो, द इमेज इज इरेक्ट, इमेज इज क्या होता है वो इरेक्ट होती है। हो गया? ओके, एवरीवन गॉट दिस, ऑल ऑफ यू? एक काम करता हूं, अभी कल का भी जो टॉपिक लूंगा ना मैं, इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट वाला, ये वाला, सो टुमारो आई विल गोइंग टू टेक दिस टॉपिक, इफेक्ट्स ऑफ करंट, ये तीनों टॉपिक के एनोटेशन के साथ में वर्कशीट एकदम भेजता हूं, चलेगा? तब तक मैं देखता हूं सोल्यूशन, वो फाइल कहाँ पे जाती है, मेरे स्पैम फोल्डर में जाती है, ट्रैश में जाती है, सो मेरे जीमेल में वो दिख रहा ही नहीं, वो फाइल कितने बार, 10 बार मैंने मेल सेंड किया है वो, तब तक मैं देखता हूं, और तीनों टॉपिक्स का विद एनोटेशंस में आपको कल शाम तक भेजता हूं। ओके, बाय टुमारो इवनिंग आई विल सेंड यू। चलो, नाउ वी विल स्टॉप ओवर हियर, सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एवरीवन, yes, bye all of you, चलो bye everyone, bye to all, सबको bye, bye Lisa, bye संकेत,
बाय संस्कृति, समीहान, बाय मे बी इट गोज इन प्रमोशंस, आई डोंट नो कहाँ पे जाता है, देखना पड़ेगा वो. चलो बाय टू ऑल, बाय एवरीवन. यस, बाय भक्ति, बाय पलक, हैव अ ग्रेट डे, बाय ब्रुनाली, बाय सोहम. चलो बाय एवरीवन, बाय टू ऑल एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर योर रिजल्ट. जितने भी बच्चे, जितने भी नहीं, 100% सभी पास हुए होंगे. सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल. यस, चलो बाय एवरीवन. Yes, bye to all, bye everyone, bye all of you.